Very good evening to all the students. All of you can hear me, people. Am I audible to all of you? I think all of you can see me, right? So people, last time, if you remember the last occasion, I was telling you that during your exam time, I would be focusing on specifically vocabulary type of questions, because vocabulary is something that I cannot teach you in a span of 1.5 months. So that way, I would not be taking too many sessions on reasoning, because reasoning needs to be practiced to get a hang of it. But vocabulary is something that you may not practice. By attending the session, you can absorb too many vocabulary words, and that will definitely help you. The only thing I want all of you to do is uh, capture or make notes of the words that you come across. So if there is any specific word that you find interesting or completely new to you, you can take down the meaning of those words. That is what you should do, so that you have that notes handy with you, and whenever you think you have time, you can go through those words. That way your vocabulary repository will keep on building and becoming bigger and better, right? Clear to all of you people? So let's start today's session. So these are some fill in the blanks kind of questions. In most of the cases, I have used either one or two blank, not more than that. But as we saw last year paper, that more there were more than in some cases we had more than two blanks, three blanks, and there were occasionally questions in which we had four blanks. So the number of blanks can increase, but that is not going to make the question tough, because you have many blanks where you can fit things and you can try to get the right answer. So when you have many blanks, it might make your job easier than otherwise. So the difference is that when you have many blanks, you can just read the entire sentence and look for the blank which is the easiest to fill. And once you have done that, then you can easily eliminate the options and you can fit the rest. So that kind of intelligent maneuvering you need to do. Okay. So let's start with the question without wasting time. Question number one, please everyone try and tell me your answer. There is no approach specifically to these kind of questions. You have to read the entire sentence, understand the contextual meaning of it, and then go and start looking at the words which make sense in the context given. Right? Please try the first question and tell me the answer for the first question. Birds, we are told, build their nests by instinct, while man constructs his dwelling by the exercise of reason. Birds never change, but continue to build forever on the self-same plan. Man alters and improves his houses continually. Reason dash, instinct dash.
What are your answers quickly? B. So this is not something, see, if you look at this independently, this cannot be filled because we don't have any context, but the context has been given to you in the first part of the paragraph, that birds build their nests by instinct and man uses reasons. Birds never change. They continue to build forever on the same plan. Man alters and improves. So in other words, what he's trying to say, that reason dash. So can I say reason develops, advances, flowers, grows? Can I say they all mean the same? If you are improving, understand this, if you are improving, then that improvement could be development, could be advancement, could be flowering, could be growing, it could be anything. The second blank therefore becomes very important, because the first blank in the first for the first blank, all the four options are having synonymous words. We need to look at the second blank and decide what could be the right answer. So instinct क्या हो रहा है? Degrade हो रहा है, retard हो रहा है, स्टेशनरी है या इंट्यूटिव है? क्या लग रहा है सबको, बताओ मेरे को। आपको एविडेंस कहां से मिल रहा है? रीजन तो डेवलप हो रहा है, वो तो दिया हुआ है, मैन अल्टर्स एंड इंप्रूव्स। इंस्टिंक्ट कैसा है? स्टेशनरी। दे बिल्ड फॉरएवर ऑन द सेल्फ सेम प्लान, यानी कि जो इंस्टिंक्ट आज से पहले 1000 साल पहले जो इंस्टिंक्ट बर्ड का था, आज भी इंस्टिंक्ट वही है उसका। So if a bird is building a nest today, I think it was building the nest same way even thousands of years ago. That means, can I say it is stationary? Why? Because we have evidence that birds build forever on the self same plan. Plan वही है, change नहीं हो रहा है। तो आप रिटार्ड तो नहीं बोल सकते ना उसको। रिटार्ड का मतलब क्या है? पीछे जाना। एक्सेलरेट मतलब आगे बढ़ जाना, रिटार्ड मतलब पीछे जाना। मेंटली रिटार्डेड, यानी कि जो पेस होना चाहिए, देखो बच्चा या फिर मेंटली सेम है जैसे बाकी लोग हैं, तो उसका दिमाग जो है 10 साल का है, 10 साल का दिमाग है उसका, बहुत आगे है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये एक वर्ड है पता है, प्रोडिजी, सुना है ना आप लोगों ने द वर्ड प्रोडिजी? प्रोडिजियस, व्हाट इज प्रोडिजियस? सर जिसका दिमाग बहुत तेज हो, मतलब एक्सेप्शनल हो। मतलब आप टाइम से आगे हो। प्रिकॉशियस भी बोलते हैं उसको, ठीक है, प्रिकॉशियस। कुछ बच्चे जो है ना टाइम के पहले ज्यादा डेवलप कर लेते हैं, इवन बोथ फिजिकली एंड मेंटली। ऐसा नहीं कि प्रोडिजियस खास करके टैलेंट के लिए यूज होता है, इसलिए जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है उसको प्रोडिजी बोलते हैं। देखो मेरा काम क्या है ना, आपको वो क्या पढ़ाना, तो मैं बहुत सारा ट्विस्ट एंड टर्न्स करता रहूंगा ताकि आपको बहुत सारे वर्ड्स दूं मैं। तो जो प्रोडिजी होता है उसको बोलते हैं चाइल्ड प्रोडिजी। आपने सुना होगा ये वर्ड चाइल्ड प्रोडिजी। जैसे मोजार्ट की बात करो, मोजार्ट वाज अ ग्रेट क्लासिकल कंपोजर इन वेस्टर्न म्यूजिक। तो 5 साल की उम्र में तो कंपोज करना शुरू कर दिया था। तो लोग बोलते हैं इसे चाइल्ड प्रोडिजी, 5 साल का बच्चा कंपोज कर रहा है, म्यूजिक कंपोज कर रहा है। प्ले तो करना अलग बात है, कंपोज भी करना शुरू कर दिया उसने। तो अगर आपको 5 साल की उम्र में, अगर आप 10 साल की उम्र में एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, कैलकुलस सॉल्व कर रहे हैं, तो 10 साल के बच्चे को तो हम प्रोडिजी बोलूंगा ना मैं, प्रोडिजियस है। प्रिकॉशियस भी वही होता है, बट इसमें फिजिकल टर्म्स में भी यूज होता है, मतलब कि बच्चा टाइम से पहले होता नहीं, दाढ़ी वाड़ी आ गई इसको, मतलब 6 फुट का हो गया 12 साल की उम्र में, तो प्रिकॉशियस हो सकता है वो। डॉक्टर्स माइट कॉल इट प्रिकॉशियस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो प्रोडिजी प्रिकॉशियस आगे है, रिटार्डेड पीछे होता है, डिग्रेड तो एकदम गिर जाना होता है। तो दोनों नहीं होगा ना, रिटार्ड की तो बात नहीं हो रही है, डिग्रेड की बात नहीं हो रही है। अब बात होती है इंट्यूटिव या स्टेशनरी। अब इंट्यूटिव अगर होता, सी इंट्यूटिव हैज टू डू विद इंटेलिजेंस। आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, तो इंस्टिंक्ट का जो बेसिस होता है वो बायोलॉजी होता है। योर इंस्टिंक्ट इज प्योरली ड्रिवन बाय बायोलॉजी। Intuition, on the other hand, is driven by what we call as prior experience, in which you arrive at something very quickly without any reasoning process. So intuition जो है वो human world में होता है, because we use intelligent experiences of the past and arrive at solutions, whereas instinct is purely based on biology. से instinct खाने का होता है, भूख लगा है ना आपको, तो जैसे कि आप वॉक कर रहे हो, बहुत भूख लगी, किसी कहीं आप मतलब पकौड़े तले जा रहे हैं, तो आप कैसे फट से देखते हो पीछे मुड़ के, क्योंकि स्मेल आई तो आपका इंट्यूशन बोलता है कि अभी कुछ बन रहा है वहां पर।
So someone who is very beautiful is walking by you, so you instinctively turn and take a look at those people, right? Because biological है ना, वो आपके control में नहीं है. Clear to everyone? So the answer has to be B. Reason advance करता है, instinct stationary है, वो पीछे नहीं जा रहा, आगे नहीं जा रहा, वैसा का वैसा ही है. Clear to everyone, people? So even in fill in the blanks, you use evidence. Evidence कहाँ से? देखो, अगर मैं इसको देखूं प्योरली तो ये तो कुछ भी भर सकता हूं मैं, मेरे मर्जी के ऊपर है. पर जब मैं कॉन्टेक्स्ट देखता हूं तब मेरे को समझ में आता है कि बर्ड्स का जो है वो सेल्फ सेम प्लान है, लेकिन मैन का इंप्रूवमेंट होता है. तो आई हैव टू पिक द वर्ड that matches these two, and therefore B is the right answer. This is the way you have to follow. सर हाँ, सही इंट्यूटिव वाला समझ में नहीं आया कि वो क्यों नहीं होगा. इंट्यूटिव इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि इंट्यूटिव का बेसिस होता है इंटेलिजेंस, जबकि यहाँ पे इंस्टिंक्ट की बात हुई है. गॉट इट सर. है ना? मैं तो देखो, आप बोलोगे इंट्यूटिव है, तो इंट्यूटिव तो अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है. आई विल टेल यू, जैसे कि कई बार लोग है ना डिसीजन मेकिंग बहुत इंट्यूटिवली लेते हैं. इंट्यूटिव का मतलब क्या होता है कि यू नो अ सेंस ऑफ जैसे अगर हम बात करें तो इंस्टिंक्ट जो होता है ना वो प्योर बायोलॉजिकल होता है. अब मैं आपको एग्जांपल कैसे दूं इंस्टिंक्ट का? खाना पीना, प्यास, the security concerns, it's an instinct होता है. My instinct told me that I have to run away to save my life. Intuition on the other hand पता है क्या होता है? जैसे आप रोड क्रॉस करते हो ना, तो आपको मालूम पड़ता है कि ये मैं क्रॉस कर ले जाऊंगा, क्योंकि एक कैलकुलेशन बनाते हो ना आप कि हाँ गाड़ी इतनी देर से आ रही है, मैं क्रॉस करके निकल जाऊंगा. ये इंट्यूशन होता है. कई बार आप क्या करते हो ना, क्वेश्चंस के आंसर फटाफट निकालते हो. इंट्यूटिव होता है. इंट्यूशन इज प्योरली बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस. It has no biological basis, whereas birds का जो काम है पूरा instinct पे होता है. That's why this is not going to make sense here. And this also makes better sense. Advances and stationary. Why? Because वैसा का वैसा ही है ना, तो उसको हम intuitive के बजाय stationary बोलना पसंद करेंगे. Question number 2 ले लो फटाफट. Tell me your answers. तो दिमाग भी लगाना सीखो हाँ, कि fill in the blank पे देखो vocabulary you might know all the words, that is very good, but still you need to get the answer correct. And for that you have to logically fill the blank. So fill in the blank kind of questions test you in two ways. The first is they test your vocabulary and therefore good understanding of words, the correct understanding of word. The second is they also test whether you are able to logically put things in place. Please try the second question. C. What have others to say? Bismarck admitted. देखो आप admit क्या करते हो? Admit क्या होगा? Feeling. To accept, right? You accept your mistakes or your good qualities. क्या एक्सेप्ट करना पड़ता है? अगर यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स और गुड क्वालिटीज, क्या बेटर फील होता है? मिस्टेक्स. व्हाई नॉट गुड मिस्टेक्स. क्वालिटीज? सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो. गुड क्वालिटीज क्यों नहीं आएगा? बिकॉज गुड क्वालिटीज तो एक्सेप्ट क्यों भाई? गुड देखो, एक्सेप्ट इज समथिंग दैट यू हैव टू एम्ब्रेस. गुड क्वालिटीज तो आप छोड़ोगे तो एम्ब्रेस क्यों करोगे? एडमिट भी वही होता है. यू एडमिट योर फॉल्ट्स, यू एडमिट योर मिस्टेक. दैट मीन्स द वर्ड एडमिट मीन्स something negative is being talked about. Are you getting my point? Bismarck admitted, तो ये जो एडमिट किया जा रहा है ये कुछ नेगेटिव होगा. तो एंटागोनिज्म हो. व्हाट इज एंटागोनिज्म? एनीवन कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंटागोनिज्म? यस पीपल, किसी को पता है एंटागोनाइज करना क्या? व्हाट इज एंटागोनाइज? एगनी देख रहे हैं ना वर्ड, यहाँ पे एगनी वर्ड आ रहा है ना. एगनी का मतलब क्या होता है? एगोनाइज. एगनी मींस Anger. पेन होता है ना. एगनी मींस पेन Pain. होता है. Pain. तो अगर आप किसी को एंटेगोनाइज कर रहे हो तो कह रहा है यू आर बेसिकली पुटिंग हिम इन पेन. और देखो एंटेगोनाइज मतलब ऐसा नहीं कि किसी को मैं दर्द दे रहा हूं जानबूझ के. एंटेगोनाइज मींस टू अपोज. एक में बहुत क्रूड वो है. एंटेगोनिज्म मींस ऑपोजिशन.
ठीक है, समझ में आएगी नहीं, हेट्रेड और ऑपोजिशन ऑफ दिस काइंड, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। बिस्मार्क एडमिटेड द एंटागनिज्म ऑफ द पॉपुलेशन हो सकता है, abhorrence of the population to what is abhor is hatred, नफरत, दिल से नफरत करना। एंटागोनिज्म जो होता है ना, विचारों का भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, सो दे आर एंटागोनिस्ट्स। भाई ठीक है, कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, वो बीजेपी से मैच नहीं होती। सो अ पर्सन हु इज इन द कांग्रेस पार्टी वुड से दैट आई एम एन एंटागोनिस्ट ऑफ द बीजेपी। He might not have any personal grudge as such. कल को कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में भी आ जाएगा। Antagonism is always opposition of interest and thought. Abhorrence is basically feeling. Hatred की feeling जो होती है वो abhorrence होती है। तो आपको किसी ने कहा I abhor you, मतलब कहीं ना कहीं आपसे वो दिल के अंदर से नफरत करता है। क्लियर हो गया सबको? So antagonism is always opposition. Abhorrence is hatred from the bottom of the heart. Aversion is dislike. ठीक है, ये भी चल जाएगा, dislike मतलब मन से मुझे पसंद नहीं है। सो एवर्जन उतना डीप नहीं होता जितना कि एबोरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फूड एवर्जन होता है लोगों को, आपको पता होगा ना, फूड एवर्जन होते हैं। आपको सर्दी हो गई तो कुछ टाइप की फूड आपको खाना तो पसंद ही, सर्दी में खाना पसंद ही नहीं आता, बट अगर एवर्जन है तो आपको एक थोड़ा सा पसंद नहीं आएगा। तो फूड एवर्जन होते हैं लोगों को, ठीक है। तो एवर्जन इज डिसलाइक, एबोरेंस इज हेट्रेड, एंटागोनिज्म इज ऑपोजिशन। चलो रैपो क्या होता है, किसी को पता है रैपो? आई हैव गुड रैपो विथ माई टीचर, मतलब अगर मैं कॉपी करूंगा और कॉपी करते पकड़ा, टीचर कुछ बोलेंगे नहीं, छोड़ देगी मेरे को। सो कहना ऐसे ये पॉजिटिव होगा तो ये एडमिटेड में नहीं आएगा। बट से दैट एवरीथिंग वुड बी डन टू डैश द पीपल, इसका मतलब बट ये है कि वॉट एवर इज हैपनिंग आफ्टर दिस वुड बी कंट्रास्टिंग टू व्हाट हैज हैपेंड हियर। यस और नो? तभी तो बट यूज किया है ना। तो कैन आई से दैट द टू वर्ड्स हैव टू बी स्लाइटली कंट्रास्टिंग इन नेचर? यस और नो? Yes. Yes, sir. Mark admitted the dash of the population, वो love हो सकता है, वो hatred हो सकता है, but said that everything would be done to dash, इसका मतलब उसका opposite आएगा। So now you will realize that once you start filling the blank, you will get the sense of it. Bismarck admitted the antagonism of the population, but said everything would be done to incite. अब incite का मतलब क्या होता है? उकसाना। Incite means to create trouble or to trigger violence. तो एंटागोनिज्म भी नेगेटिव है, इनसाइड भी नेगेटिव है, तो बट क्यों आ रहा है? अगर ये एंड होता तो मैं समझ में आता कि बिस्मार्क एडमिटेड द एंटागोनिज्म ऑफ द पॉपुलेशन टू द रूल एंड सेड एवरीथिंग वुड बी डन टू इनसाइड द पीपल। नफरत करते हैं मुझे तो मैं हर चीज करूंगा जैसे उनको और उकसा दूं। बट मीन्स समथिंग कॉन्ट्रास्टिंग इज हैपनिंग, तो रिवर्सल हो रहा है। तो क्या होगा? बिस्मार्क एडमिटेड द aversion of the population to Prussian rule, dislike है, but everything would be done to conciliate। अब आपको मीनिंग नहीं पता तो आपको मैं एग्जांपल देता हूं। What is reconciliation? सर ठीक करना। पहले से पैचअप था, अब खराब हो गया, फिर से अब तो रिकंसाइल हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? री मतलब फिर से होता है ना। तो व्हाट इज रिकंसिलिएशन? दो दोस्तों के बीच में अच्छी दोस्ती थी, बीच में कुछ दरार आ गई, अब वापस से आप लोगों ने पैचअप करने का प्लान किया है, तो उसको रिकंसिलिएशन बोलते हैं ना। तो री नहीं होगा तो ठीक है, फिर से नहीं हो रहा है, पहली बार हो रहा है। सो कैन आई से कंसिलिएशन इज बेसिकली पैचअप? Yes, sir. तो यहां पे डिसलाइक था, बट एवरीथिंग इज बीइंग डन टू पैच अप। कैन आई से इट मेक्स परफेक्ट सेंस एंड जस्टिफाइज द प्रेजेंस ऑफ द कंजंक्शन बट। सर Yes. जो एंड होता है रूट वर्ड, उसका क्या मतलब होता है? एंड एंड जो रूट वर्ड होता है, ये जैसे यहाँ पे एंटागोनिज्म था। ऑपोजिट होता है। एंड मतलब एंड एंटी, ये एंटी, ये सब रूट बनेंगे तो ये ऑपोजिट होते हैं। तो सर एगोनी का मतलब तो वो था ना, मतलब ऑलरेडी नेगेटिव था, उसके साथ जब एंड जुड़ नहीं गया नहीं नहीं, और ये जो एंटागोनिज्म है ना, तो ये मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था। क्या एगोनिज्म याद रखो तो आपको याद रहेगा कि ये नेगेटिव वर्ड है। उसमें मैं खाली ट्रिक दिया हूं आपको, मैंने बताया कि एगनी उसमें यूज हुआ है।
तो यहाँ पे जो है वो एंड प्लस एगनी का यूज नहीं हुआ क्या इस वर्ड को नहीं, डेवलप करने के लिए? वो रूट आया नहीं है, वो रूट नहीं आया हुआ है। अच्छा, आई जस्ट गिव ओके यू अ ट्रिक टू रिमेंबर द वर्ड। अगर आप भूल जाते हो तो इस तरह से याद कर लेना। ओके ओके। इनसाइट का मतलब पता है ना क्या होता है, सबको पता ही होगा। देखो अभी तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग वर्ड आते हैं, ठीक है। देखो कंफ्यूजिंग वर्ड करने के लिए ना आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, खाली आपको दिमाग लगाना है कि ये दोनों वर्ड में क्या फर्क है। अब हो सकता है कल को एग्जाम में ये इनसाइट आ जाए या इनसाइट, दोनों को तो एक ही तरह से प्रोनाउंस करते हैं ना यार। बट फर्क क्या है, ये इनसाइट क्या होता है, ये इनसाइट है बेसिकली some sort of observation that you get from things, है कि नहीं। तो ये इनसाइट क्या होता है, ये उकसाना है, ये नाउन है और ये वर्ब है। समझ में आया कि नहीं, ये नाउन है, ये वर्ब है। जैसे आप बोलते हो ना कि आई वर्क फॉर 2 years इन अ कंपनी, इट गिव्स मी इनसाइट्स इनटू द वर्किंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग कैसे करता है उसकी वर्किंग्स के बारे में मेरे को बहुत सारा आइडिया मिला, वो इनसाइट होता है। एंड व्हाट इज इनसाइट? उकसाना। So she incited me, or the politician incited the mob, or provoked the mob, or instigated the mob, सब synonym है। Clear to everyone? Incite, instigate, provoke Yes, synonym, sir. antagonism, abhorrence synonym है। अब थोड़ा थोड़ा फर्क है यार, aversion हल्का होता है एकदम, antagonism विचारों का मतभेद होता है, abhorrence मतलब दिल से नफरत होता है। तो if I want to say which one would you pick, I would say ठीक है यार aversion रखो। I have aversion to people नहीं होता, aversion to something होता है, not to someone। ठीक है, anyways let's not discuss too much। वो मतलब पता होना चाहिए, बाकी हल्के फुल्के डिफरेंसेस को भूल जाओ। हम लोग यहाँ पे लिटरेचर का एग्जाम नहीं दे रहे हैं ना, वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिमेंबर द वर्ड्स। एक मिनट आ गया। थर्ड वाला आंसर क्या होगा? थर्ड और फोर्थ दोनों ट्राई करो। और हर एक वर्ड को जब सुनते हो ना, देखो इससे क्या होता है कि आप लिखते भी रहो, so that tomorrow if a similar situation comes you would be able to recall कि अच्छा हाँ ये वर्ड तो हमने डिस्कस किया था कहीं पर, और फट से स्ट्राइक हो जाता है। Fortitude. ठीक है, तीसरे का जो भी आंसर होगा, यू नो द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स बाय द वे, B. सबका मतलब पता है क्या? No, sir. तो फिर आंसर मार्क करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि इतना तो इजी क्वेश्चन नहीं है। द ब्रिटिश डेल्यूडेड बाय, तो ये भी तो इम्पोर्टेंट वर्ड है ना, डेल्यूजन, डेल्यूजन वर्ड है। Brahm. डेल्यूजन, यू आर डेल्यूडेड, तो ये इट्स लाइक अ वर्ब फॉर्म, इट्स लाइक अ नाउन। अब डिल्यूजन को डिल्यूजन मतलब होता है फॉल्स बिलीफ। हमारे सबके अंदर फॉल्स बिलीफ होते हैं ना। कई बार क्या होता है ना कि जो मीडिया नहीं होती, मीडिया वो एक डिल्यूजन क्रिएट करती है लोगों के सामने। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि व्हेन द मीडिया इज नॉट ऑब्जेक्टिव, तो आपको यू वुड बी डेल्यूडेड इनटू बिलीविंग समथिंग, है ना। जैसे कई बच्चे होते हैं कि दे स्टडी इन अ वेरी, क्या बोलते हैं, यू नो, आप कई बार क्या होता है कि यू आर इन अ वेरी स्मॉल, कुएं का मेढक कैसा होता है, you study in a very ordinary school amongst ordinary people, you are doing well, so you believe that you are very very good in something, or you are a very very good student, you are very intelligent. But when you write an entrance test of the level of IB Mat, then you realize कि आप कितने पानी में थे। So can I say that you are living in the delusion that you are a very very good student? Yes. है ना, you were living in the delusion। आपके अंदर एक गलत बिलीफ था कि आप बड़े अच्छे स्टूडेंट हो। ठीक है, सो deluded means what? Fooled by, or basically wrongly believed by। So British deluded by their dash still cherished extravagant ideas of Indian wealth।
सो कौन सा ऐसा चीज होगा जो आपको ये बिलीव कराए कि इंडिया में बहुत सारा पैसा है? बहुत सारा पैसा बहुत सारा पैसा सोचने वाला आदमी कौन होगा? ऑल्ट्रुइस्टिक होगा, एवरिशियस होगा, या माइजरली होगा? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, एवरिशियस मींस ग्रीडी, एवरिस मींस ग्रीड, एंड एवरिशियस मींस ग्रीडी। ये दो वर्ड होते हैं। देखो, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, इसलिए एवरिस ग्रीड होता है, एवरिशियस ग्रीडी हो जाता है। ठीक है, तो कैन आई से ग्रीड कैन गिव यू दिस बिलीफ? Yes or no? If you are greedy, only then can you cherish that India has extravagant wealth. So if I put the word deluded by their greed, it makes sense. Fortitude is basically what? Strength of character. इसका तो कोई चांस ही नहीं यहाँ पे आने का, ये तो बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। Altruism means what? Large heartedness, दूसरों का भला सोचना, इसको बोलते हैं ऑल्ट्रुइज्म, ऑल्ट्रुइस्टिक। तो न ये है न ये है, बिकॉज दे बोथ आर वेरी पॉजिटिव। एंड व्हाट इज माइजरलीनेस? अ माइजरली पर्सन इज अनविलिंग टू स्पेंड टू मच। कंजूसी। कंजूसी होता, तो कंजूस आदमी, मतलब देखो यार, ग्रीडी आदमी को बहुत वेल्थ दिखाई देगा इंडिया में, बट माइजरलीनेस तो कम खर्च करेगा ना, वो तो अपना ही पैसा बचाने में लगा होगा। तो कैन आई से बी इज द बेस्ट आंसर? यस। है ना? यस सर। अगर कुत्ते को बहुत भूख लगी है तो वो जहां भी देखेगा ना हड्डी पड़ा, उसको लग रहा है यार यहाँ तो बहुत खाना रखा हुआ है। So he is deluded by his hunger and thinks that there is lots of bones and meat in the corner. So that is how it is trying to. So ठीक है, anyways we have understood. So कितने सारे word हैं? Miser. Sir, can you once tell the main difference between delusion and illusion? I will give you that meaning. Delusion और illusion, ठीक है? So ये है delusion, ये है illusion, और एक है disillusion. डिक्शनरी माइट से द सेम, बट थोड़ा फर्क है। ये आपके अंदर क्रिएट किया गया है और ये आपके सेंसेस की गलती है। आपको मैं एग्जांपल दूं, इल्यूजन इज फॉल्स परसेप्शन, एंड डिल्यूजन इज फॉल्स बिलीफ। एग्जाम्पल देता हूं मैं। I was living in the delusion that I am very good in maths, until I wrote IP Math exam. So I was living in the delusion that I am a very, very good student, very intelligent, much better than many others, until I wrote my IP Math paper. The moment I got my result, my delusion collapsed. इल्यूजन क्या होगा? उसमें आपकी गलती नहीं होती है। आप मूवी देखने जाते हो ना, तो थिएटर पे स्क्रीन पे लग रहा है यार ये भाग रहा है, हीरो मार रहा है उसको, तो आपको लग रहा है कि जो कैरेक्टर अलाइव है एकदम, राइट? इल्यूजन है वो। एक्चुअली जो फ्रेम्स है ना, वो फ्रेम्स को फेंका जा रहा है एक सर्टेन स्पीड पे, तो वो स्पीड से आते हैं तो आपके अंदर एक भ्रम क्रिएट होता है कि ये मूव कर रहे हैं। क्या आपकी गलती? आपकी गलती है क्या ऐसा अगर दिख रहा है आपको? तो नो सर, आपकी गलती नहीं है भाई, ये तो आपका परसेप्शन है, फॉल्स परसेप्शन है, बट आपकी गलती थोड़ी ना है। एक और एग्जांपल देता हूं आपको मैं। हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सन वहां से राइज हुआ, दोपहर में एकदम यहाँ पे आ गया और शाम को सेट हो गया। सो कैन आई से दैट यू गेट द इल्यूजन दैट द सन इज मूविंग whereas the earth is stationary? यस यस, ये इल्यूजन है आपका। यस सर। ये इल्यूजन है, क्योंकि भैया आपको जैसा दिख रहा है वैसे ही आप मानोगे ना यार। अब मैं बैठा हूं यहाँ पे, धरती हिल भी नहीं रही है, ऐसी की ऐसी लग रहा है, हाँ यार पूरा अर्थ एकदम खड़ा है बैंड बीच में और स्काई में सन मूव हो रहा है।
तभी तो बहुत साल तक लोगों को लगा कि अर्थ इज स्टेशनरी, द सन इज मूविंग अराउंड द अर्थ। फिर गैलीलियो जैसा बंदा आया, बोलता है भाई यार अर्थ स्टेशनरी नहीं है, अर्थ मूव हो रहा है, सन स्टेशनरी है। सो ये जो है ये डिल्यूजन नहीं है, ये तो इल्यूजन है। बिकॉज भाई मेरे को जैसा दिख रहा है मैं वैसा ही फील करूंगा ना यार। बट So डिल्यूजन, means delusion is more of a personal feeling, we can say that. delusion is a belief, is a personal thing. Illusion is basically your sense and perception is involved. इसलिए false perception बोला गया है और ये false belief बोला गया है। And what about disillusion? भ्रम जब टूटेगा तो disillusion होगा। Okay, okay, sir. Got it. Disillusioned मतलब पता है क्या होता है एक्चुअली ये वर्ड, मतलब दिस वर्ड इज नॉट कनेक्टेड विद द अदर टू। बट जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है ना कि आपको लगता है यार दुनिया जबरदस्त है, एकदम करियर है और ये है वो है। वंस यू गो आउट इन द वर्ल्ड यू फील दैट यार लोग चीट होते हैं, बदमाश होते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। द डिजर्विंग वंस डोंट गेट सक्सेस, द अनडिजर्विंग वंस गो अहेड इन लाइफ। तो क्या होगा हाल आपका? यू वुड बी डिसइल्यूजन बाय व्हाट यू सी एंड एक्सपीरियंस। तो भ्रम को टूटने को हम डिसइल्यूजन बोलते हैं। फोर्थ का आंसर क्या होगा? Sir, C. You know what is the meaning of ardor? What is ardor? Ardor is passion. Ardent, sir. हाँ, ardent से आगा passion and enthusiasm. ठीक है, तो इसको कई बार लोग ऐसा भी लिखते हैं ARDOUR। आर्डर है तो यहां से आर्डेंट आता है। आर्डेंट सपोर्टर ऑफ द आम आदमी पार्टी, मतलब कि पैशनेट, एकदम लॉयल्टी, एकदम दिल से। तो एक तो आर्डर हो गया, दूसरा अपैथी। अपैथी क्या होती है? एनीवन? Absence of feelings. एब्सेंस ऑफ फीलिंग है ना। तो अपैथी है, ठीक है, मतलब अपैथेटिक नहीं होता है। इंडिया में आप देखोगे कि बहुत गरीबी होती है, तो मतलब यू नो बेगर्स कीप ऑन बेगिंग, दे कीप ऑन सॉलिसिटिंग फॉर समथिंग, और आप लोग चले जाते हो, ऐसे ही वॉक करते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। बट इफ एन यूरोपियन कम्स, लेट्स से फ्रॉम फिनलैंड और स्वीडन, वहां तो ऐसा भीख मांगने वाला हिसाब किताब नहीं है। तो वो क्या बोलेगा मालूम है? क्या बोलता है? आई एम डिस्टर्ब्ड बाय द अपैथी ऑफ इंडियंस टुवर्ड्स दीज बेगर्स, है ना। I am disturbed by the apathy of the people towards these kind of things. तो वो सोचता है कि इतने सारे भिखारी हैं, लोगों का तो दिल मतलब तो रोना चाहिए, बट यहाँ तो ऐसे लोग चल रहे हैं, भिखारी पीछे भागते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं। So they might feel that Indians are apathetic towards these beggars. तो apathy क्या होता है? Lack of feeling, जहाँ पे feeling होना चाहिए। Lassitude is lack of energy. Ardor is passion and enthusiasm. So what is frigid? फ्रिजिड से फ्रिज आता है ना, फ्रिजिड जोन Like snow, hard. हाँ, तो फ्रिजिड का मतलब क्या? वार्म। देखो, फीलिंग्स वार्म होगी तो अच्छा होगा या कोल्ड होगी तो अच्छा होगा? वार्म फीलिंग्स अच्छी, Warm. कोल्ड फीलिंग्स अच्छी होता है। बोलते सर कोल्ड फीलिंग्स में मजा नहीं आता, योर फेस टर्न कोल्ड होता है ना। वार्म ग्रीटिंग्स बोलते हो आप, तो वार्मथ में क्या होता है ना कि देयर इज प्लेजेंटनेस। कोल्डनेस में क्या होता है? लाइफलेस होता है। तो अगर कहीं फ्रिजिडिटी है तो वहां पर इमोशंस की कमी है। समझ में आ रहा है? फ्रिजिडिटी अगर होती है तो इमोशंस की कमी है। कई बार क्या होता है ना, पेपर में आता है कि मतलब डिवोर्स हो गया, डिवोर्स रेट बहुत हाई है इंडिया में। तो फिर उसने लिखा कि भाई हाई क्यों है, तो उसने कहा फ्रिजिडिटी इज द मेन रीजन व्हाई कपल्स इन अर्बन एरियाज आर नॉट हैप्पी। तब उसने कहा फ्रिजिडिटी इज द मेन रीजन, मतलब क्या है कि दोनों के अंदर कोई वार्मथ नहीं है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं है। So frigid means lack of feeling, lack of warmth, lack of emotion. Lassitude means lack of energy. Apathy means lack of feeling. So can I say odd one out तो आर्डर बन जाता है, बिकॉज ये तीनों नेगेटिव हो जाते हैं।
और ये होता है आर्डर मीन्स पैशन। देयर ही कंटिन्यूज ही स्टडीज विद डैश मेड हिमसेल्फ मास्टर। तो मास्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? If you want to become a master of something, can I say you have to do that thing with great ardor? And therefore, A is the right answer. Yes. Yes, sir. Okay. So now what we are doing is basically that we are looking at the context of the sentence. ये बहुत जरूरी है। देखो ये प्योर वोकेबलरी नहीं है, ये आपको देखना है कि यार ये पूरे कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है। तो आप बोलोगे यार देखो देयर ही कंटिन्यूज स्टडीज विद डैश। अब ये अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, बट ही मेड हिमसेल्फ द मास्टर ऑफ समथिंग। दैट मींस ही मस्ट हैव डन हिज स्टडीज विद ग्रेट ग्रेट डिवोशन। तो आपको लगेगा कि यार एपैथी तो नहीं होता, लैसिट्यूड पता नहीं होगा, तो मीनिंग नहीं होगा, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको मीनिंग जानना भी जरूरी है, कॉन्टेक्स्ट समझना भी जरूरी है, तभी आपके आंसर बनेंगे। ठीक है, तो दिस टेक्निक यू हैव टू यूज। You have to use both the context and also the meaning to arrive at the right answer. Sometimes context is enough, and even if you know the meaning of one word, it is good enough for you to get the question correct. Fifth question karo. सर ए। ओके, तो किसी ने ये कहा, बात आगे। सर ए और सी। ओके, ए और सी। बी। ए या सी होगा, सब लोगों ने सब कुछ बोल दिया अभी तो, बट डी आना बाकी है। देखो क्या होता है ना कि ये क्वेश्चन थोड़े टफ है, बट मेरा आइडिया ये नहीं कि आपको टफ क्वेश्चन कराऊं। मेरा आइडिया ये है कि आपको मैं बहुत सारे वर्ड का मीनिंग बताऊं। सो इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट समथिंग सिमिलर माइट कम इन द एग्जाम, बिकॉज इतना भी केक वॉक नहीं है आईपी मैट पेपर। बट आपको कोई एविडेंस मिल रहा है क्या जहां से आप बोलो सर यहां से मेरे को लग रहा है ये, वी कैन यूज दिस क्लू? यस, आई थिंक इज इंक्लाइन टू डैश। अब मेरे को पता नहीं क्या होगा। एट ऑल लेवल्स हिज लैंग्वेज इज टू ग्लोइंग। ये ग्लोइंग लैंग्वेज कैसा होता है? बताओ मुझे, लैंग्वेज ग्लोइंग कब होता है? ग्लोइंग लैंग्वेज। The way of expressing it means his language is growing. मतलब वो जिस तरीके से लैंग्वेज को बोलता है, तो कैन आई से वो that is so fascinating. तो वो बेसिकली कैन आई से वो थोड़ा जैसे कि छोटी चीज, जैसे कोई लड़की मान लो सुंदर है, सो यू लुक, जैसे आप किसी पार्टी में गए तो भाई ठीक है, ग्लोइंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि सिंपल फैक्ट्स कुड बी पुट इन वेरी डेकोरेटिव लैंग्वेज, है ना? छोटी छोटी चीज के लिए बड़ी बड़ी भाषा यूज हो रही है, तो कैन आई से इट इज टू ग्लोइंग? हो सकता है ना भाई। ग्लोइंग का मतलब होता है कि समटाइम्स एंड सिंपल फैक्ट्स आर सेट फोर्थ इन डैश मैनर। तो ये यहाँ कैसे होगा? दैट द डैश वन। अगर लैंग्वेज ग्लोइंग है तो वो बिवाइल्डर करेगा, स्टूपिफाई करेगा, एडिफाई करेगा, इल्यूमाइन करेगा। आप बोलोगे सर कुछ भी कर सकता है, इल्यूमाइन भी कर सकता है, ग्लोइंग लैंग्वेज है। स्टूपिफाई भी, आई एम स्टूपिफाइड कैसे होता है? सरप्राइज्ड। जैसे भाई आपके क्लास में कोई लड़का है जो बड़ी बड़े वर्ड यूज करता है छोटी छोटी चीजों के लिए, तो बोलेगा यार वी आर स्टूपिफाइड एट द वे ही यूजेस दीज वर्ड्स। स्टूपिफाइड इज ऑलवेज सरप्राइज्ड। इल्यूमाइन मींस अज्ञानी था मैं, मुझे किसी ने ज्ञान दे दिया। तो इल्यूमाइन इज नॉट द राइट वर्ड, बिकॉज इल्यूमाइन कहाँ होता है? जहां पे इग्नोरेंस होता है। यहाँ तो लैंग्वेज बड़ा हो रहा है ना, तो इल्यूमाइन तो नहीं करेगा वो। स्टूपिफाई कर सकता है, बिवाइल्डर भी, सरप्राइज वो भी हो सकता है। You have to look at this here. बोस्ट क्या होता है? बोस्ट और इसमें क्या फर्क है?
कोई मुझे बताएगा? The boast is more about telling the fake things. बोस्ट हमेशा अपने बारे में होता है। बोस्ट हमेशा Or speaking highly about Yes, sir. yourselves. योरसेल्फ। आप अगर हिंदुस्तान के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो आप बोस्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हिंदुस्तान इज नॉट यू और योर कंट्री। बट इफ यू टॉक अबाउट योर कार, योर फ्लैट, योर हाउस, योर पेरेंट्स, then you are boasting about yourself. But if you talk about Indian cricket team in a very, exaggerated way, that is not boasting, because you don't own the Indian cricket team. So exaggerate is always, exaggerating means बड़ा चढ़ा के बोलना किसी चीज के बारे में भी। बोस्ट है अपने बारे में बोलना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अपने बारे में बोला जा रहा है, इन जनरल बोला जा रहा है? सिंपल फैक्ट्स है ना। So if simple facts are set forth, I won't call it as boasting. I would call it exaggeration. Yes or no? Yeah. तो ये तो बाहर हो गया। इसको मिसकोट बोलेंगे या एग्जैजरेट बोलेंगे? अगर आपकी लैंग्वेज ग्लोइंग है तो मिसकोट तो नहीं हो रहा है ना। वो तो आपने बस बड़ा चढ़ा के कोई लैंग्वेज को यूज करके थोड़ा शाइनिंग बना दिया। क्या ऐसे मिसकोट भी नहीं होगा? पर सर What's the सिंपल exact meaning of फैक्ट्स के साथ misquote? तो मिसकोट जा रहे हैं ना। नहीं, फैक्ट्स मिसकोट के साथ तो यूज हो सकता है मिसकोट। मिसकोट का मतलब किसी ने कुछ बोला, उसको मैंने मिसकोट करके कुछ और बोल दिया। मिसकोट क्या होता है पता है क्या? किसी ने कुछ बोला है मुझे और मैंने वो चीज को ले आकर के कुछ और बना के बोल दिया। ओके सर। वो फैक्ट नहीं होता। वो तो बेसिकली जैसे भाई हम दोनों बात कर रहे हैं बैठ के, तो हम दोनों ने बात किया एंड जैसे कई बार डिस्कशन नहीं होता, डिस्कशन पैनल होता है। तो आपने कुछ शुरू में बोला, फिर एंड में मैंने वही चीज बोली, तो मैंने वो गलत बोल दिया, तो आपने कहा यू आर मिसकोटिंग मी। Okay. डिड यू अंडरस्टैंड मिसकोट क्या होता है? कोट का मतलब क्या होता है? किसी ने कुछ बोला है। और मिसकोट का मतलब क्या हो गया? जो बोला था उसके अलावा कुछ गलत मैंने, मतलब जो बोला था वो नहीं, कुछ और ही बोल दिया मैंने, एज इफ आई एम कोटिंग समवन। तो शेक्सपियर ने कहा कि भाई ठीक है, शेक्सपियर ने कहा कि व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। आई माइट मिसकोट हिम सेइंग दैट व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज अ वुमन। तो आप बोलोगे सर यू आर मिसकोटिंग शेक्सपियर, इट शुड नॉट बी अ मैन, इट शुड नॉट बी वुमन, इट शुड बी मैन। ठीक है, तो इफ द लैंग्वेज इज ग्लोइंग then simple facts might be exaggerated, and that means they might bewilder you, surprise you, है ना? I think he is inclined to exaggerate. At all instances his language is too glowing and simple facts are set forth in a manner that they bewilder one. छोटी छोटी चीजों को जब बड़ा करोगे तभी तो सरप्राइज होगा ना। yes or no? Yes, sir. bewilder का मतलब वही Yes. सरप्राइज होगा। bewilderment बोलते हैं ना हम लोग। I was bewildered by his behavior. हाँ जी। कैरिकेचर क्या होता है? किसी को पता है क्या? व्हाट इज कैरिकेचर? So newspapers में जो What कार्टून was it? कार्टून बनाते हैं ना किसी चीज का, तो कैरिकेचर होता है। सो व्हेन यू आर कैरिकेचरिंग समवन, यू आर बेसिकली उसके फीचर्स को एग्जैजरेट करते हो आप। हाँ, कार्टून सी तो होता है ना, वो पेपर में कार्टून नहीं आते हैं। तो राहुल गांधी, आपको पता है राहुल गांधी का बनाया हुआ है, लेकिन उसको फीचर्स को थोड़ा एग्जैजरेट किया हुआ है कॉमिकल इफेक्ट लाने के लिए। जब आप कैरिकेचरिंग करते हो ना, तो आप बेसिकली ग्राफिकली करते हो। You do graphic, caricaturing is done, always done graphically to make fun of something. Understand this please. Caricaturing is आर के लक्ष्मण। हाँ, आर के लक्ष्मण का काम ही, बहुत सारे जो कार्टूनिस्ट होते हैं उनका काम ही यही होता है कैरिकेचर के फॉर्म में, द कैरिकेचर पर्सनैलिटीज। तो कैरिकेचर का एक और मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है? सो यू हैव अंडरस्टूड ऑल द वर्ड्स। एडिफाई का मतलब क्या होता है? सो इल्यूमाइन इज बेसिकली टू इम्पार्ट नॉलेज। एक मिनट। illumine means to impart knowledge, ठीक है?
जैसे इल्यूमिनाइंग क्या होता है, जैसे अंधकार होगा तो डार्कनेस होगा, करेक्ट, और वहां पे जब बत्ती जलाऊंगा तो इल्यूमिनेशन हो जाएगा ना. So you are ignorant about something, and when you get knowledge, you are illumined. Edify is to morally instruct. To morally instruct someone. बहुत रेयर है, ये यूज नहीं होता आजकल. 6th क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी जल्दी. ये बढ़िया क्वेश्चन है. Understand this that when you use although, that means ये part जो है ये इससे contrast होगा, इस पूरे से. That is why you use although. So although का मतलब क्या है? Positive and negative ideas साथ में लाए गए हैं. Now you just check and tell me which is making perfect sense. Sir, A. Sir, B. जल्दी जल्दी बोला मत करो, खतरा है. किसने ए कहा, किसी ने बी कहा, क्या होगा? Although the style is sometimes dash, he is considered dash and is one of the most valuable authorities for the history. तो मुझे ये पता तो कोई यहाँ से आपको समझ में आएगा आंसर क्या होगा. ये मेरे को पता नहीं क्या है, लेकिन मेरे को ये समझ में आ रहा है कि अगर ये डैश है तो ये मोस्ट वैल्यूएबल हो जाएगा, यानी कि ये जो वर्ड है पॉजिटिव होना चाहिए. सर डी. है ना? अगर देखो, अगर वो मोस्ट वैल्यूएबल है तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तभी तो मोस्ट वैल्यूएबल बनेगा ना भाई. तो मुझे क्या करना चाहिए पता है क्या? एक सर्टेन सेक्शन को पकड़ करके ना पहले उसको तोड़ना चाहिए. तो ही इज कंसिडर्ड ट्रूथफुल, और ट्रस्टवर्दी भी तो हो सकता है ना यार. यस सर, बिकॉज ही इज गिविंग सम वैल्यू. हाँ, वैल्यू दे रहा है तो ट्रूथफुल भी हो सकता है, ट्रस्टवर्दी भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, दोनों मीनिंग पॉजिटिव है. ट्रस्टवर्दी होगा तभी तो उसको हम अथॉरिटी मानेंगे ना. अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि बात में दम है उसके, वो फर्जी नहीं है. सर बट आगे ज्योग्राफिकल भी तो लिखा है ना. नहीं नहीं नहीं, स्पेशली का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलरली. तो ज्योग्राफिकल मैटर्स में उस पर हम रिलाई कर सकते हैं, एथनोग्राफिकल मैटर्स में उसे हम रिलाई कर सकते हैं, उस पर वो वैल्यूएबल सॉरी, अथॉरिटी. तो मैंने मैटर्स नहीं पढ़ा था. हाँ, वही तो प्रॉब्लम है ना, मैटर्स है ना, ये लिखा हुआ है. तो ट्रूथफुल होगा तो उसको मानेंगे अथॉरिटी. ट्रस्टवर्दी होगा तो, इनक्रेडिबल होगा तो वो अनबिलीवेबल होता है ना, तो ये तो आंसर नहीं बनेगा. अनबिलीवेबल होगा तो फिर उसमें वैल्यूएबल अथॉरिटी कैसे मानेंगे उसको? और ग्रैंडियोस, देखो यार, ग्रैंडियोस का मतलब होता है बहुत बड़ा, दिखने में बहुत बड़ा है, हो सकता है भर्जी निकले. तो ये दोनों नहीं होगा आंसर, या फिर सी होगा या फिर डी होगा. कहना ऐसे इम्पेकेबल ट्रूथफुल दोनों पॉजिटिव वर्ड है. हाँ या ना? इम्पेकेबल परफॉर्मेंस कैसा होता है? अच्छा होता है ना. ट्रूथफुल भी अच्छा होता है. तो अगर इम्पेकेबल ट्रूथफुल दोनों है तो ये ऑल्दो क्यों यूज कर रहे हो आप? लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सर डी होगा. आंसर डी होगा. द स्टाइल इज बम्बास्टिक. ऑल्दो द स्टाइल इज बम्बास्टिक. बम्बास्टिक का मतलब क्या होता है? बोल बच्चन टाइप. पता है ना व्हाट इज बोल बच्चन? बताओ इसका मीनिंग. नहीं सर, चुप नहीं रहते. थोड़ी बड़ी बड़ी बातें समझ में आया? ऑल्दो द स्टाइल इज बम्बास्टिक मतलब लिखने का जो तरीका थोड़ा बड़ा चढ़ा के है. ऑल्दो ऐसा है बट ही इज कंसिडर्ड एज अ ट्रस्टवर्दी गाय. समझ में आएगी नहीं? यस सर. स्टाइल बम्बास्टिक है और Yes. फैक्ट बम्बास्टिक ना हो, है ना. फैक्ट शायद होता होगा बट स्टाइल जो है वो लिखने का थोड़ा बम्बास्टिक है. तो ऑल्दो द स्टाइल इज बम्बास्टिक, ही इज कंसिडर्ड एज अ ट्रस्टवर्दी गाय एंड इज द मोस्ट वैल्यूएबल अथॉरिटी फॉर द हिस्ट्री ऑफ द 6th century. बहुत बढ़िया है. Negative word bombastic, positive word trustworthy. That's why we have used the conjunction although. Clear to everyone? सर हाँ बट जी आपने सर. जब इनक्रेडिबल को वो किया था, रिमूव किया था,
तो इनक्रेडिबल का मतलब नहीं, नहीं, पॉजिटिव वे में तो होता है ना, नहीं तो दैट मैग्निफिसेंट। इनक्रेडिबल इज अनबिलीवेबल, बट यार ये अथॉरिटी है, कोई क्रिकेट मैच थोड़ी ना खेल रहा है कि इसको बोलूंगा, जब परफॉर्मेंस को इनक्रेडिबल बोलेंगे, ऐसी चीज को बोलो इनक्रेडिबल, है ना? he is one of the he is considered as a he is considered incredible and is one of the most well authority. See, incredible जो चीज होती है ना, वो हम कहाँ यूज करेंगे यार? कोई आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस में होगा, कोई ऐसी चीज जो जबरदस्त है एकदम। एक अथॉरिटी के लिए तो ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो, एडजेक्टिव्स को यूज करना सीखो आप। इफ ही इज अ वैल्यूएबल अथॉरिटी ऑन समथिंग, तो हिस्टोरिकल चीजों पे वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए और फैक्ट को लिखना आना चाहिए उसको। इनक्रेडिबल हिस्टोरियन नहीं होते हैं, इनक्रेडिबल प्लेयर्स होते हैं, डांसर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं। हिस्टोरियन तो खाली फैक्ट लिखता है, वो ट्रस्टवर्दी होगा, रिलायबल होगा, पंक्टिलियस होगा। आप समझ रहे हो ना कि एडजेक्टिव कैसा वर्ड यूज करोगे आप हिस्टोरियन के लिए? यस यस यस, गॉट इट। सो ऑलवेज यूज द राइट एडजेक्टिव फॉर द राइट काइंड ऑफ पीपल। अगर आप रॉन्ग काइंड ऑफ एडजेक्टिव यूज करोगे तो थोड़ा कॉमिकल इफेक्ट लेके आ जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा ही इज एन इनक्रेडिबल सर्जन, अब ठीक है, अच्छी बात है, इनक्रेडिबल है, बट मैं बोलूंगा ही इज अ गुड सर्जन, ग्रेट। मैं इनक्रेडिबल यूज नहीं करूंगा। आई मीन आई विल फील लिटिल ऑकवर्ड टू यूज इनक्रेडिबल। समझ में आ गया ना आप लोगों को क्या कैसे यूज करना है अपने को? ये सब इम्पेकेबल मीन्स फ्लॉलेस, इनक्रेडिबल मीन्स अनबिलीवेबल, बट नॉट यूज इन दिस सेंस। ग्रैंडियोस का मतलब है बहुत बड़ा चढ़ा के, दिखने में बहुत बड़ा है एकदम। बोम्बास्टिक मीन्स inclined to using slightly you know exaggerated tone and style. Magniloquent means बहुत ज्यादा बोल बच्चे, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें हैं। Clear to everyone? यस सर। 7th क्वेश्चन, जल्दी जल्दी देखो। वर्ड्स की मीनिंग पता नहीं होंगे तो बहुत दिक्कत होगी। कोई इश्यू नहीं है। आई विल गिव यू द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स, बिकॉज ये बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके अंदर यार। ये बहुत टफ, मतलब टफ इन द सेंस इट्स अ गुड कलेक्शन ऑफ मेनी मेनी लेस नोन वर्ड्स, lesser known words, I would say. सर ए और डी। ए होगा या डी होगा? ओके, ब्रेविटी, डिसोल्यूशन, एंड डाउनिंग। सर ए। देखो, अपने को क्या देखना है ना, कि देखना है कि कहां पर ये टूटेगा। ये एलआर पजल की तरह होता है। एवरी ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन, एवरी डीप थॉट ग्लाइड्स insensibly into the same mournful chant of the dash of life, of the slow decay. So अगर ये डिके की बात कर रहा है ना, एक तो ये मोनफुल बोल रहा है, यानी कोई चीज मर रही है, डिके हो रहा है, तो यहाँ पर भी सिमिलर आइडिया आएगा ना। ये सर नेगेटिव है ये पूरा नेगेटिव सेंटेंस। है। डीके के साथ डॉनिंग जाएगा ना। डिके के देखो, डॉनिंग मतलब सुबह होता है, तो सुबह जब होता है तो बच्चे के लिए डॉन यूज करोगे, बुड्ढे के लिए आप डेके यूज करोगे। डॉनिंग तो सर पॉजिटिव हो गया। हाँ, डॉनिंग हाँ हाँ, पॉजिटिव गया, और इट इज बेसिकली द स्टार्ट ऑफ समथिंग, डिसोल्यूशन। है ना? ये डॉनिंग हो रहा है और डेके भी हो रहा है, साथ में कैसे होगा यार? मतलब बट लगा दो ना अगर आपको डॉनिंग की बात करनी है तो डेके के सर साथ। डिसोल्यूशन नेगेटिव सेंस में जाएगा ना। यही तो, नेगेटिव ही चाहिए ना अपने को यार। मोनफुल चैंट है, स्लो डेके हो रहा है, तो डेके के बाद क्या होगा? डिसोल्यूशन ही होगा ना। है कि हाँ जी नहीं? सर। द स्लो डेके एंड डिसोल्यूशन ऑफ ऑल अर्थली थिंग्स। सो ब्रेविटी क्या होगा? ब्रेविटी इज शॉर्टनेस ऑफ समथिंग। समझ में आया कि नहीं? सर क्लियर? डज इट रिलेट टू ब्रीफ? ब्रीफ, ये उसका मतलब ही ब्रीफ होता है। ब्रीफ एडजेक्टिव है, ब्रेविटी नाउन है, छोटे टाइम के लिए। Every beautiful description, every deep thought glides into the same mournful chant of the brevity of life, shortness of life. Shortness है, slow decay है, dissolution है, perfect है, सब words मैच हो रहे हैं ना। देखो, कॉन्ट्रास्ट कब करोगे? जब बट आएगा, जब ऑल्दो आएगा, जब येट आएगा, जब नेवरदलेस आएगा,
जब इन स्पाइट ऑफ आएगा, जब आप हाउएवर यूज करोगे तो ये सब में कंट्रास्ट आएगा ना। आपने तो क्या बोला, मोurnful चैंट ऑफ डैश ऑफ डेके एंड डैश, तो आपने तो खाली एंड, मतलब आप सब आइडिया सेम ही है, ये सब कहीं भी आए नहीं, तो आप कंट्रास्ट क्यों करोगे आप। परमानेंस है, यूनिफिकेशन है, अरे परमानेंस कहां से आ गया जब डेके हो रहा है। फ्लावरिंग कैसे आएगा जब आप एंड लिख रहे हो। एफिमरल तो सही है, बट डॉनिंग क्यों होगा फिर। डॉनिंग बेसिकली मींस द बर्थ ऑफ समथिंग। डस्क समझ में आता है, ट्वाइलाइट समझ में आता है। व्हाट इज ट्वाइलाइट, व्हाट इज द सर, जो ट्वाइलाइट। शाम और रात के बीच का समय होता है। हाँ, तो इसका मतलब आ गया ना, खत्म होने वाली जिंदगी है। कोई आदमी 60-65 साल का है, वो किस में है, डॉन ऑफ लाइफ है, द ट्वाइलाइट आवर ऑफ हिज लाइफ। ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट है ना। Twilight. कब कब बत्ती कभी भी गुल हो जाएगी। लेकिन कोई पैदा हुआ है तो डॉन है ना, डॉन ऑफ लाइफ में है वो। सर, छोटा व्हाट इज एफेमेरलिटी? एफिमरल मीन शॉर्ट लिव्ड, पर्टिकुलरली फिजिकल सेंस में यूज होता है। जैसे कोविड आया था ना, तो आपको पता है बहुत लोग, यंग लोग जा रहे थे, दे पास्ड अवे अनफॉर्चुनेटली। तो लोग क्या कमेंट मारते हैं, लाइफ इज सो एफिमरल। इटर्नल, एफिमरल आर antonyms. Eternal is something that lasts forever. On the Yes. other hand, ephemeral is something that lasts for a very short time. Ephemeral joys बोलते हैं, पता है क्या। जैसे आपका आईपी मैट में बहुत अच्छा रैंक आ गया, और आप खुश हो गए एकदम, मतलब इतना खुश हो गए कि, तो पापा बोलेंगे ठीक है बेटा, अच्छी बात है, पर जिंदगी बहुत बड़ी होती है। All these joys are ephemeral. You will go into an IM and again you will have to start fighting again. So there is never ending fight going on in life. So everything is ephemeral, short lived. Yes or no? Same चीज transitoriness है. What is transitory? Transitioning, हाँ, moving जल्दी from खत्म, one stage to हाँ, another. जल्दी खत्म हो जाता है। जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं ना, जब उनको बहुत दिन बाद देखो तो बड़े हो जाते हैं। मतलब किसी को आपने देखा था तो वो 4-5 साल का था, अब आपने उसको 7-8 साल के बाद देखा तो 15 साल का हो गया, या 12-13 साल का हो गया। तो आप बोलोगे यार, मतलब लुक एट द ट्रांजिटरीनेस ऑफ लाइफ। यू ट्रांजिट, यू कीप ऑन मूविंग क्विकली फ्रॉम वन स्टेज टू द अदर। सो एफिमरलिटी, ट्रांजिटरी, ब्रेविटी, ये सब एक ही मतलब है मोटा मोटी। They have their Sir, repeat twilight. twilight basically means the evening time, the ending time of something, the twilight hour. संध्या, twilight is basically सन डूब गया है लेकिन अंधेरा नहीं हुआ है। The sun has set but there is still some light. So the period after sunset and before complete darkness is twilight. So sir, dusk भी तो कहते How dusky तो बोलते हैं ना उसको। Twilight hour, dusk एक ही चीज है मोटा, मतलब more or less they are same thing. ठीक है, 8th क्वेश्चन करो। B. का बाकी लोग C. यार कुछ तो C मतलब sir. Contrasting traits दिखा रहे सर, but आ गया बीच। कॉन्ट्रास्टिंग आ रहा है, तो बट आ गया तो उसका मतलब कुछ कॉन्ट्रास्ट होने वाला है। अब देखो क्या हो रहा है, अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ये तो बट आ गया, यानी कि ये दोनों सिमिलर क्वालिटी हैं। As foreign minister he was dash and dash, पता नहीं क्या था, but when war was necessary he prosecuted it vigorously and left nothing to chance. तो when war came he became something different. That means he must have been something different before. तो क्या होगा आंसर, ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि विजिलेंट एंड रैश आर कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज। एंड लगा करके आप यहाँ पे विजिलेंट लिखोगे, यहाँ पे रैश लिखोगे तो गलत हो जाएगा ना।
Yes or no? How can he be both vigilant and rash at the same time? And how can he use the conjunction and? That means these two words have to be synonymous. Agree or disagree? Yes. Everyone agrees with it, right? As foreign minister, he was cautious and circumspect. Can I say they both are the same? What is cautious? Not aggressive, right? Yes. And circumspect भी वही होता है. Yeah. संभालना देख के. But when war came, he became vigorous. है ना? हो सकता है तो this can be the answer. ये तो पक्का नहीं होगा. As foreign minister, he was aggressive and ruthless. ठीक है, अच्छी बात है. तो aggressive भी है, ruthless भी है और vigorously भी है. तो but क्यों लगा रहे हो आप? Are you getting my point? Yes, sir. भाई but लगाने की जरूरत नहीं ना, फिर तो आप and लगा दो. As foreign minister, he was aggressive and ruthless. And when war came, he prosecuted it vigorously and left nothing to chance. वैसी सी बात है, वो एग्रेसिव था, रुथलेस था, इसलिए जब वॉर आता था तो वो सब कुछ विगरसली करता था. लेकिन हमने यहाँ पे एंड नहीं, यहाँ पे बट यूज किया है. इसका मतलब क्या है कि जब वॉर आता था तो विगरस होता था, लेकिन वॉर के पहले वो शायद कुछ और होता था. कैन आई से सी मेक्स परफेक्ट सेंस? Sir, vigorously here means विगरस मींस एग्रेसिवली. okay, sir. है ना? विगर्स क्या होता है? विगर मतलब व्हाट इज विगर? विगर क्या होता है बताओ? जोश, जज्बा, विगर होता है ना वो. स्पोर्ट्समैन कैसे होते हैं? विगरस होते हैं ना वो लोग. लेजी नहीं होते, सोते नहीं रहते. सो विगरसली का मतलब क्या होता है? विद ग्रेट एंथुजियाज्म एंड एग्रेशन. तो इसका मतलब ये है कि इसके बट के पहले बाय नेचर वो कुछ और रहा होगा, लेकिन जब वॉर आता था तो वो विगरस हो जाता था. यानी एज फॉरेन मिनिस्टर ही वाज कॉशियस एंड सर्कमस्पेक्ट. बट आप बोलोगे ना, एज अ स्टूडेंट आई वाज लेजी एंड लेड बैक, बट व्हेन द एग्जाम्स केम आई वर्कड हार्ड एंड लेफ्ट नथिंग टू चांस. सही लग रहा है ना? Yes. As a student, Yes, sir. I was lazy and laid back, but when the exam came, I worked hard and left nothing to chance. Now that makes sense. Now it justifies the presence of the conjunction but. तो आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं. बट यूज हुआ है, एंड यूज हुआ है, हाउएवर यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, उससे आप कॉन्ट्रास्टिंग लगाते हो. हम तो रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ भी यूज करते हैं, चिपकाते रहो. इंग्लिश बोलना, इंग्लिश बोलो. अरे इंग्लिश बोलने से काफी नहीं होता ना. यू हैव टू आल्सो एंश्योर दैट यू यूज द राइट वर्ड्स. ठीक है? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना 9th वाला, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है मेरे से, तो ये क्वेश्चन मत करो, लेकिन ये वर्ड करो. ये वर्ड बताओ उसका मतलब क्या है, सब वर्ड का. जल्दी जल्दी. Which is the easiest word? Cowardice. What is cowardice, by the way? Darpok. 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 Same as timid. Lack of Same moral. as timid. Coward means डरपोक, particularly moral courage. देखो बच्चा भी डरपोक होता है, उसको हम cowardice नहीं बोलेंगे. लेकिन 5 साल का बच्चा जो है वो अंधेरे से डर जाएगा ना, तो उसको आप कावर्ड बोलोगे क्या? डरपोक तो बच्चे भी होते हैं, डरपोक तो कुछ लोग, बट डरपोक इज नॉट नेसेसरीली ऑलवेज कावर्ड. कावर्ड जहां यूज करते हैं जहां पर मॉरल क्वेश्चन आ जाता है. समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भागना, उसमें सेंस में यूज करते मॉरल उसमें कावर्डिस आ जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एग्जाम्पल दूं एक, कि भाई अब जैसे दो लोग छुरा लेके आपके पीछे भाग रहे हैं, आपको पता है कि अब तो जान ले लेंगे मेरे, अब आप भाग गए, तो आपको कावर्ड बोलूंगा क्या मैं? नो. अच्छा भाग लिया. वरना आईपी में रह जाता है कि नहीं. तो कावर्डिस नहीं होगा ना. लेकिन आपके दोस्त को 2-3 आपके दोस्त और आप घूम रहे हो, किसी ने आपके दोस्त को पकड़ के है ना झगड़ा वगड़ा कर लिया, आप जैसे देखे मारपीट और भाग लिए वहां से. Now that is cowardice, because you as a friend of that person should have stood there and at least fought for him. And if you don't do that, you are a coward then, and you have shown cowardice.
तो कावर्डिस एक सिचुएशनल चीज होती है, ना कि प्योर डरपोक। डरपोक तो हम सब हैं यार, कौन डरपोक नहीं है। बट मॉरल जो लैक ऑफ मॉरल करेज, दैट इज कावर्डिस इन द प्रिसाइज सेंस। ठीक है, यही फर्क है कावर्डिस में और टिमिडिटी में, मीकनेस में और डॉसिलिटी में। समझ में आया कि नहीं? मीकनेस बच्चों में होता है, टिमिडिटी बाय नेचर होता है किसी किसी लोगों में, डॉसिलिटी। तो टिमिडिटी जो है, मीकनेस और डॉसिलिटी, ये सब तीनों एक्सेप्टेबल है। कावर्डिस मेक्स यू अ विलन। क्लियर टू एवरीवन? Docile means quiet and get easily scared by others. Children can be docile. Meekness मतलब सीधा साधा भोला भाला वो होते नहीं है। Have you seen all those जो वॉचमैन होते हैं, गार्ड वार्ड होते हैं, कितने मीक होते हैं। You can't call them coward. Clear with this, everyone? So timid, meek, and docile, all these basically means not having aggression, getting easily scared by others, can be scared easily by others. Cowardice becomes a very, very negative trait. Irony, mockery मतलब मजाक उड़ाना किसी का, पहली चीज है। mockery is basically गंदा मजाक उड़ाना। raillery basically means good humored fun. आप मॉकरी में ही मजाक उड़ाते हो, आप इसमें ही मजाक उड़ाते हो। फर्क क्या है? मॉकरी में आप किसी रेस्पेक्टफुल चीज का मजाक उड़ाते हो, और रेलरी में आप गुड ह्यूमर्ड फन होता है। समझ में आया कि नहीं सबको? Sir, mockery is kind of disrespecting someone, na? हाँ, मॉकरी By making fun of them. हाँ, रेस्पेक्टफुल चीज का मजाक उड़ाना मॉकरी होती है। आपका दोस्त है, आप कट्टे पे बैठे हो, मजाक मजे उड़ा रहे हो किसी दोस्त के अपने, वो रेलरी होगा, मॉकरी नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी सर, समझ रहा हूँ। हाँ, मतलब कट्टे पे नहीं बैठते, कैंटीन बैठ के Yes. मजे ले रहे हो आप किसी के, तो वो जो मजे लेना होता है जी गुड सर। ह्यूमर्ड फन होता है वो। उसको हम रेलरी बोलेंगे, उसको मॉकरी नहीं बोलेंगे। लेकिन आपने किसी रेस्पेक्टफुल चीज का मतलब धज्जियां उड़ा दिया आपने, तो बोले यू आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ दिस, मॉकरी ऑफ द शो, और मॉकरी ऑफ द एंटायर प्रोटोकॉल, है ना। मतलब जैसे कि भाई कॉन्वोकेशन नहीं होता। एक बार एक इंसिडेंट हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, कॉन्वोकेशन सेरेमनी था। वो बंदी फेमिनिस्ट थी, वो शॉर्ट्स उसमें आ गई, मिनी स्कर्ट में आ गई। तो लोगों ने बोला यार ये तो कॉन्वोकेशन है, थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। बाय वेयरिंग अ मिनी स्कर्ट एंड कमिंग टू अ कॉन्वोकेशन, यू आर मेकिंग मॉकरी ऑफ द एंटायर सेरेमनी। यस और नो? यस सर। ठीक है। Yes Yes, sir. sir. और कोई एमपी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो चलो भाई ठीक है, यंग है, वो मिनी स्कर्ट पहन के चली गई उसमें, तो मीडिया वाले इसको उछालेंगे, बहुत बड़ा तमाशा बना देंगे, बोलेंगे यू आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द प्रोटोकॉल्स ऑफ द पार्लियामेंट। मॉकरी वो होगा, रेलरी नहीं होगा। सटायर क्या होता है? सर एक तरह से ताना मारना। देखो सटायर पता है क्या होता है? सटायर इज बेसिकली वर्क ऑफ आर्ट। ताना तो आप मारते हो, ताना तो मतलब देखे हो, ताना तो भाई रोज घर में होता है। सटायर नहीं बोलोगे उसको, सरकाज़म बोलोगे आप। व्यंग जो होता है ना, वो सटायर नहीं होता, लेकिन जब वो आर्ट वर्क बन जाता है तो वो सटायर होता है। जैसे कोई मूवी बनी है, उस मूवी में आपने पॉलिटिशियंस का बड़ा भद्दा मजाक उड़ाया है, तो सटायर है। क्लियर विद दिस? यस सर। सटायर इज So द can वर्क। you repeat the meaning of meekness and the example which you gave of guard? I don't मतलब समझ नहीं आया, वो रिलेट नहीं कर पाया मैं। नहीं, मीकनेस और डोसिलिटी एक ही जैसी होती है यार। मतलब एनिमल्स मीक होते हैं। मीक का मतलब पता है क्या होता है? इग्नोरेंट एंड लैकिंग एग्रेशन। भोला भाला एकदम शांत स्वभाव का मीक नहीं होता। I'll give an example, have you seen those lambs and young animals जो पैदा होते हैं, कितने मीक होते हैं। मीक का मतलब क्या होता है? Not causing harm to anyone. Cow. हाँ, the cows are meek, but हाँ, cows can be meek. Baby cows are meek, but सांड नहीं होता, सांड मीक नहीं होता, वो मारेगा। तो मीकनेस का मतलब वही होता है कि जो किसी को ठेस नहीं पहुंचाएगा, neither by word nor by deed.
Okay, okay, okay. है ना, मतलब ऐसा होता है, मतलब वीकनेस इज बेसिकली लैकिंग अग्रेशन, लैकिंग हॉस्टिलिटी, उस तरह का है। And ठीक सर है, जब हम बोलते हैं क्वेश्चन के बाद जब got it sir, तो वैसे देखा जाए तो got it is the correct term or we should use get it? ये गॉट इट होगा ना, पास्ट टेंस आएगा। ठीक है सर, डिड यू मुझे गेट लगा इट, था। डिड यू गेट इट बोलूंगा मैं, डिड यू गेट इट, है ना। तो ये बेसिकली डिड यू गेट इट, डू यू गॉट इट, डू यू गेट इट, डू यू गेट इट, तो उस तरह का होगा। बट ठीक है, चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, लंबा चौड़ा हो रहा है। 10th and 11th, तो 10th तो 11th करते हैं, बाकी आप एज अ होमवर्क करना, अपन डिस्कस कर लेंगे जल्दी जल्दी। प्लीज टेक द क्वेश्चन ऑफ 10th and 11th। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। 10th करो, डिफिकल्ट होगा, बट आई विल गिव यू नाइस एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। अरे बहुत डिफिकल्ट है यार ये तो। डॉक्यूमेंटिंग साइंसेस डैश फिलोसफी वुड बी डैश, since it is almost axiomatic that many philosophers what is axiomatic? Undoubtable होता है, axiomatic means undoubtable। Unquestionable, that's the right word actually। एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आपने एक्सियम देखे हैं क्या? ज्योमेट्री में होता है एक्सियम, होता है थियरम होता है। थियरम क्या होगा? पाइथागोरस थियरम होगा, 30, 60, 90 थियरम होता है। एक्सियम पता है क्या होता है? सर मतलब सर वो इतना ऑब्वियस होता है कि उसको एविडेंस नहीं चाहिए होता हाँ, प्रूफ। अब ये पूरा 180 डिग्री है, इसको प्रूव करूं क्या बैठ के मैं? ये पूरा 180 डिग्री होता है, इसको प्रूव करने की जरूरत है क्या? तो ये एक्सियम हो जाएगा। सर एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्रूव दैट इट इज अ ट्रायंगल। दिख रहा है हाँ, भाई सामने 3 साइड। Prove that root 2 is irrational. if you join 3 non-collinear points it forms a triangle, ये एक्सियम हो जाएगा ना। अब लोग इसको भी पता है, प्रूव करने बैठ जाते हैं, कोई काम धंधा नहीं है ना। Anyways, axiomatic मैथ्स टीचर सर। documenting sciences dash philosophy would be dash, since it is unquestionable that many philosophers use scientific concepts as the foundation of their speculation। What is speculation, by the way? इसका सर वो क्या मतलब होता है? बेटिंग टाइप्स। Message. बेटिंग टाइप्स। हाँ देखो, स्पेकुलेट का मतलब क्या होता है बताएगा? कि गेस करना। हाँ गेसिंग सर। गेसिंग वही होता है जो होने ही वाला है उसकी गेसिंग करोगे ना। जो हो चुका है वो तो फैक्ट हो गया। इसलिए जो मार्केट में काम नहीं करते, स्पेक्यूलेटर्स होते हैं ना स्टॉक मार्केट के अंदर, वो पता है क्या करते हैं? वो बोलते हैं अरे यार देखो अभी इसका भाव गिरेगा, तो एक तुक्का लगा रहे हैं। इट कुड बी इंटेलिजेंट गेस, इट कुड बी वाइल्ड गेस, दैट वी डोंट नो, बट स्पेकुलेशन बेसिकली मींस some sort of guesswork। Documenting sciences dash philosophy would be dash, since it is almost axiomatic that many philosophers use, so philosophers are using scientific concept, है ना। तो साइंस का इन्फ्लुएंस किस पे हो रहा है? फिलोसफी पे हो रहा है ना, बिकॉज philosophers use scientific concept। तो साइंस का इन्फ्लुएंस फिलोसफी पे होता है ना। ये डिस्ट्रस्ट यूज करोगे आप। Which one do you think is better, distrust or influence? Please tell me, which is contextually better, distrust or influence? Influence. Distrust अगर होता तो why would philosophers use scientific concept? Distrust का मतलब क्या होता है? Lack of trust। So because philosophers are using scientific concepts as the foundation for their speculation, it basically means that they have some sort of that means science has some sort of influence on, hello,
हाँ बोलो ना। तो क्या लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंटिंग साइंसेस इन्फ्लुएंस पॉसिबल है। साइंस रिलाई कर रहा है, फिलोसफी रिलाई कर रहा है साइंस पे? फिलोसॉफी ऑन सर। फिलोसफी सर साइंस पे। तो साइंसेस इन्फ्लुएंस ऑन है ना कि साइंसेस रिलायंस ऑन, तो ये भी गलत है ना, बिकॉज फिलोसोफर्स यूज कर रहे हैं साइंस को, यानी कि फिलोसफी साइंस पे रिलायंस कर रही है, ना कि साइंस फिलोसफी पे। सिमिलरली ये भी तो रॉन्ग है ना, हाँ डिपेंडेंस भी रॉन्ग है सर। डिपेंडेंस भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लुएंस ऑन परफेक्ट लग रहा है अपने को। Documenting science's differences from philosophy would be impossible. Since it is almost axiomatic that many philosophers use, documenting science's differences from philosophy would be impossible. Why do you think it's impossible? अब देखो यहाँ पर contextual meaning कहाँ से आता है? बहुत लोग ये मार्क कर देंगे, बोलेंगे हाँ सबको बड़ा मजा आ रहा है, दोनों वर्ड समझ में आ रहे हैं। What is superfluous by the way? Anyone? मतलब क्या होता है superfluous का? दो वर्ड आपको ध्यान देना है, superfluous एंड सुपरफिशियल। क्या फर्क है दोनों में, कोई मुझे बताएगा? सुपरफिशियल सर थोड़ा वो फेक टाइप्स होगा ना, ऊपर ऊपर से, हाँ फेक है। सूडो साइंस होगी। सुपरफिशियल मतलब पता है क्या होता है? जो ऊपरी सतह पे रहता हो, डेप्थ नहीं है उसके अंदर। जाली काम। हाँ सुपरफिशियल का मतलब, सुपरफिशियल आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। सुपरफिशियल जैसे कोई लोग नहीं होते हैं स्माइल देते हैं, आपको देखना है बहुत लोगों का स्माइल सिर्फ मुख सिर्फ ऐसा होता है बस। पार्टी वार्टी में पार्टी वार्टी में जाओगे तो देखो कि खाली वो आपको देखे ऐसा कर निकल जाते हैं आगे, आपको मालूम पड़ता है स्माइल फर्जी है, क्योंकि स्माइल आंखों में नहीं आई है। जैसे दिल्ली की गन और यूपी के कट्टे। हाँ तो जब आप किसी की स्माइल समझते हो कि ये दिल से नहीं आई, तो आपको क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल स्माइल, यानी सिर्फ ऊपर से है, मन से नहीं आया है। ठीक है, सो समथिंग दैट लैक्स डेप्थ इज नोन एज सुपरफिशियल। क्लियर? हाँ व्हाट जी इज सर। सुपरफ्लुअस? मोर देन रिक्वायर्ड। व्हाट इज सुपरफ्लुअस? मोर देन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कह सकते हैं सर। नहीं है एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मोर देन रिक्वायर्ड। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब फिर वो अलग हो जाता है। अरे भैया आप एग्जाम में जा रहे हो, तो आपने पूछा सर मैं एग्जाम में जा रहा हूँ, कितने पेन लेके जाऊं? मैं बोलूंगा मैंने 2 पेन लेके जाओ यार, एग्जाम देने में 50 10 15 पेन रख ले। बोला दीज आर सुपरफ्लुअस, है ना? पता चले पेपर में कुछ नहीं आता। हाँ सुपरफ्लुअस। अब 2 3 पेन है, मालूम पड़ा ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो, 3 पेन बहुत है यार, खराब होगा चौथा पेन दे देंगे वो लोग आपको। So carrying 10 pens because you're writing IPMAT does not make any sense. It is superfluous, है ना? Did you get it now? आपने कहा सर मेरा IPMAT एग्जाम में कितने वर्ड याद कर लूं? बोला यार 5000 6000 वर्ड कर लोगे तो बहुत है। एनीथिंग अबाउट दिस इज सुपरफ्लुअस, कोई फायदा नहीं है। जो 6000 वर्ड में नहीं होगा वो 10,000 में भी नहीं होने वाला। क्लियर टू एवरीवन? So documenting science's influence on philosophy would be superfluous. Why? Because it is already unquestionable that many philosophers use scientific concept as foundation. तो बहुत सारे फिलोसोफर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, तो डॉक्यूमेंटिंग साइंस इन्फ्लुएंस ऑन फिलोसफी वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। यस और नो? डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? सर ये बात डाइजेस्ट नहीं, एक बार वापस बताओगे? देखो व्हाट इज सुपरफ्लुअस? जो वेस्ट होता है, किसी काम का नहीं है। आप डॉक्यूमेंट क्या करते हो कोई चीज को? देखो यहाँ पे बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है मालूम है क्या? कि डॉक्यूमेंटिंग यानी रिकॉर्डिंग, recording science's influence on philosophy would be a waste of time or would be a waste. Why? ये जो since होता है because का काम करता है। अच्छा हाँ सर समझ गया, यहाँ पे एक्सियोमेटिक सर ऑब्वियस की तरह यूज हो रहा है ना। हाँ axiomatic मतलब obvious है यार, it is obvious that philosophers use scientific concepts, तो फिर documenting की क्या जरूरत है यार? Did you understand now? सही है सर, समझ यस गया सर। यस
अब मेरे को जब मैं ई देखता हूँ वो समझ में नहीं आता ये कर क्या रहा है। देखो यार प्रॉब्लम क्या है ना कि सिंस का मतलब बिकॉज होता है, यानी इसके बीच में कुछ रिलेशन तो होना चाहिए ना। डॉक्यूमेंटिंग साइंस डिफरेंसेस फ्रॉम फिलोसफी वुड बी इम्पॉसिबल। व्हाई? पॉसिबल होना चाहिए ना यार। अगर बहुत सारे फिलोसोफर्स साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंटिंग साइंसेस डिफरेंसेस फ्रॉम फिलोसफी वुड बी पॉसिबल। व्हाई डू यू से इट इज इम्पॉसिबल? और मेरे को उसका रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है। whether it is possible or impossible वो समझ में नहीं आ रहा है। philosophers यूज कर रहे हैं तो documenting science differences from philosophy would be possible. Clear to everyone? Clear. ठीक है। हाँ ठीक है, we have a class, एक और क्लास है तो मैं खत्म कर रहा हूँ, बाकी आप होमवर्क करके रखो, ठीक है। and lots of new Okay, sir. ठीक है। हाँ, खत्म करता हूँ। टोटल कितने क्वेश्चन है? आई थिंक मैं शीट शेयर कर लूंगा, ठीक, ग्रुप में। थैंक यू सर। चलो बाय। बाय सर, हैव अ गुड डे। Bye, sir.